संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज हमारे बीच भक्ति के उस पहलू पर चर्चा करना आवश्यक है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।
भक्ति जो हमारे पाप कर्मों को नष्ट न कर सके, हमारे प्रारब्ध में भोगने वाले पाप और पुण्य को ज्यों का त्यों रहने दे, क्या ऐसी भक्ति का कोई अर्थ रह जाता है? ऐसे में यह सवाल उठता है कि वास्तविक भक्ति मार्ग क्या है? क्या इस संसार में कोई ऐसा सच्चा गुरु है जो हमें सही राह दिखा सके? या क्या हमें अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर यह निर्णय लेना चाहिए कि कौन सच्चा गुरु है और कौन सी भक्ति मार्ग सही है? आज हम आपको उत्तर प्रदेश के निवासी श्री राजकिशोर जी से मिलवाते हैं। राजकिशोर जी पहले एकनाथ गुरु जी से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके गुरु स्वयं शारीरिक कष्टों से पीड़ित थे। जब राजकिशोर जी ने उनसे पूछा कि वे क्यों दुखी हैं, तो उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस बीच राजकिशोर जी स्वयं भी जीवन में कई कष्टों से गुजर रहे थे, परंतु जब उन्हें एक सच्चे संत की शरण मिली, तब उन्हें अपने दुखों का असली कारण समझ आया। उन्होंने वास्तविक भक्ति और साधना के सही मायने सीखे। इस मार्गदर्शन से उन्हें जो लाभ प्राप्त हुए, उन्होंने न केवल उनके कष्टों को दूर किया, बल्कि उनके जीवन में शांति और संतोष भी लाया। आइए स्वयं राजकिशोर जी से जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर दास है। राजकिशोर जी आप कहाँ से हैं? गांव ककर्रा, जिला मैनपुरी से आए सर, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? जनवरी 2012 को उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले एक सिरसागंज के पास एक आश्रम है, उनके नाथ बाबा नाम के नाम से जाना जाता है, उनसे उपदेश लिया था हमने। वो जैसे बुखार आ जाता हल्का बल्का तो झाड़ फूंक कर देते थे वो, लेकिन काफ़ी समय से उपदेश ले रखा था हमने। तो बाद में कहानी ये हुई कि हमारे गुरुजी को भी विशेष परेशानी होने लगी, कई एक बीमारी उनको हो गई। तो एक बार हम लोग बैठे थे वहाँ, तो गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी आप हम लोगों की परेशानी झाड़ फूंक करते हैं, सही हो जाती है, लेकिन आपका कष्ट ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? तो गुरुजी काफ़ी समय तक तो बैठे रहे, शांत रहे। थोड़ी देर बाद बोले, भाई जब तुम लोग जो दान दक्षिणा हम लोगों को देते हो, कोई अच्छे आते हैं कोई बुरे आते हैं, उनका पैसा खाने से हमारी ये कंडीशन हो रही है। कोई ज़्यादा हल नहीं होती थी, केवल शुरुआत ये मालूम पड़ता था कि हाँ परेशानी ख़त्म हुई, लेकिन ख़त्म नहीं होती थी परेशानी। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से विशेष ही ज़्यादा लाभ हुए, जिसको तो बखान ही नहीं कर सकते सर जी। कितने परमात्मा ने लाभ दिए। शुरुआत तो ये है भगत जी, जब से हमने उपदेश परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से लिया है, आश्रम में गए थे बरवाला आश्रम में, तो हमारे घर से फ़ोन पहुंचा कि तुम्हारी समर ख़राब हो गई ट्यूबवेल वाली। 1 महीना पहले वो ट्यूबवेल वाली समर ख़राब हो गई थी, समरसेबल, तो पैसा इधर उधर से कर्ज निकाल के सही करवाई थी। 1 महीना बाद जब फिर ख़राब हो गई, आश्रम में पहुंचे तब वहाँ सूचना पहुंच गई कि आपकी समर ख़राब हो गई। हम और मेरे घर से भक्तवती हैं, दोनों ही लोग गए थे आश्रम में। तो हमने भक्तवती को बताया कि भाई ऐसे ऐसे समरसेबल ख़राब हो गई है, फ़ोन आया है भाई साहब का, जो कि हमारे वो मिस्त्री हैं, उसी का ही काम करते हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया, वो ऐसे ऐसे ख़राब हो गई। फिर और भक्तों से हमने संपर्क किया, भक्त लोगों ने बताया कि आशीर्वाद लेने जाओ तो परमात्मा से कह देना। तो हम गए, परमात्मा से आशीर्वाद लिया और अपना हाथ जोड़ के कहा, मालिक विशेष ही ज़्यादा कष्ट है, हमको बहुत परेशान हो रहा है। परमात्मा ने हाथ रख के कह दिया, जाओ बेटा सही हो जाओगे। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि महाराज जी ने केवल हाथ रखे और बता दिया कि सही हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे। दुखी विशेष ही ज़्यादा हो रहे थे। जब तक हमारी पूरी बात नहीं सुनी जाए, अपने मन में थी कि हमारी पूरी बात सुनी जाए, तब तक कैसे कष्ट आ रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, भक्तों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, परमात्मा से कहा? हमने बिल्कुल कहा कि क्या कह दी परमात्मा ने, कि ये कह दिया कि भाई सही हो जाओगे। भगत जी ऐसे कैसे सही हो सकते हैं? उन्हें उन भक्तों से कहा, करे परमात्मा ने कह दिया तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। भगत जी वहाँ से हम तीसरे दिन आए अपने घर पे। उसके बाद हम अपनी समर पर गए, तो समर हमने देखी, समरसेबल देखी, तो वास्तविक वो ख़राब रहे। जब मैंने उसको तार फार लगा के देखा, हमारे भाई साहब जो मिस्त्री थे उनने कहा था कि समरसेबल ख़राब हो गई है तुम्हारी। तो हमने देखा तो मोटर बिल्कुल सही रहे। जब मोटर सही रहे
तो बहुत बड़ी खुशी हो गई। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमारी ये मोटर सही कर दी। उनको फ़ोन लगाया भाई साहब से, मिस्त्री साहब से, तो उनने कहा कि भाई हमारा तो ख़राब है, मोटर फूकी हुई है। अरे हमारे की मोटर सही है, आपके स्टार्टर में कोई कमी होगी। तब तक एक गांव का लड़का आ गया, उसने कहा भाई क्या हो गया? हमने भाई पता नहीं, परमात्मा जाने इसमें क्या हो गया है, कोई स्टार्टर में कमी हो गई है, मोटर तो मेरी सही है। जब तक उस लड़के ने जन पता नहीं क्या किया और तुरंत बटन दबाया, समर सेवल बिल्कुल पानी देने लगी। हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। घर पर दौड़ के आए, जो भक्तमती से कहा हमने ऐसे समर तो सही हो गई। तो भक्तमती ने कहा कि हम ऐसे ऐसे प्रण भी कह भी आए थे परमात्मा से कि अगर हमारी समर सेवल खराब हो गई, फूक गई, तो परमात्मा आपके इस आश्रम पे पैर नहीं रखूँगी। लेकिन जय हो बंदी छोड़ की, हमारी समर सेवल बिल्कुल सही हो गई। और उस दिन से आज दिन तक जो हम घोर कष्ट में थे, बहुत ज़्यादा कीचड़ में घुसे थे, सो आज परमात्मा ने ऊपर बिल्कुल उठा दिया है। और ये छोटे मोटे चमत्कार तो हमारी बीमारी, एक बार ऐसा हुआ, हम अपनी दुकान पर थे, तो दुकान पर ही हमको सर्प ने काट लिया। हमने देख तो नहीं पाया सर्प कहाँ चला गया, मिला नहीं, लेकिन उसके निशान थे काटने के। तो 10-15 मिनट बाद हमको उसका असर होने लगा, आँखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देने लगा, जबान भी बंद होने लगी। तो वहाँ झाड़ फूँक वाले जो नाक वाँक रखते हैं, वो लोग बैठे थे वहाँ। उनसे हमने कहा भाई ये देख लो सर्प ने काटा है, क्या है, कुछ हमको दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा तुमसे वो नाक वाँक बजवा देंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो हमने कहा भाई जो तो हमारी मर्यादा भंग हो गई। उनको ऐसे ही हमने उनको टाल दिया। फिर हम अपनी दुकान में फिर आ गए। तो परमात्मा से हमने अरदास लगाई है, मालिक अगर हमें इनसे ढाक बजवा रहे हैं तो नाम खंडित हो जाएगा। मालिक आप ही जो कुछ कर सकते हैं वो आप ही करो। तो परमात्मा के जहाँ स्वरूप लगा था, जहाँ हम चाकी जलाते थे, वहाँ मैंने दंडवत किया वही दुकान में ही। केवल दंडवत करके परमात्मा के वहाँ से खड़े हुए, और जो हमारी आँखों में बिल्कुल अंधापन हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, जवान भी बैठ रही थी, तो एकदम स्वस्थ हो गए। इंजेक्शन देर में असर करता है, लेकिन हम दंडवत करके खड़े हुए, इतनी देर में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जय हो बंदी छोड़ की। ऐसे ही कई एक परमात्मा ने चमत्कार दिखाए हमारे पास, कई एक चमत्कार है। हमारी जो भक्तमती हैं, उनको बिच्छू ने काट लिया था अंगुली में। उनके इंजेक्शन हमने लगा दिए, जो अंगुली सुन्न हो गई, और हमने दवा लगा के हमने कह दिया कि भाई सिकाई कर लो। तो वो सिकाई करने लगी। सिकाई में क्या हुआ, उनको सुन्न अंगुली थी, वो आँच की जो तपन होती है वो दिखाई लगी नहीं उनको, तो अंगुली बिल्कुल जल गई। जब जल गई तो जब बाद में उन्होंने देखा, मैंने ये तो तुमने बहुत गड़बड़ कर लिया। तो कम से कम 10-15 दिन 20 दिन तक तो हम ड्रेसिंग करते रहे, पट्टी करते रहे, दवा देते रहे, लेकिन वो अंगुली बिल्कुल नहीं सही हुई। फिर आगे जो सैफई अस्पताल है हमारे पास में, पीजीआई हॉस्पिटल है, वहाँ दिखवाया। वहाँ कम से कम 4 डॉक्टर MBBS जो डिग्री होल्डर है, सरकारी है, तो उसमें दिखवाया। उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो अंगुली कटेगी। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, हमने डॉक्टर साहब कैसे भी हमारी अंगुली बचवा दो, जो खर्चा हो वो हम तैयार हैं खर्च करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने आगरा विनीत पाठक डॉक्टर है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनको भी दिखवाया, और वो थोड़े संपर्क में भी थे। तो उन्होंने कहा भाई इस अंगुली में तो कुछ ही नहीं कर सकते, केवल कटेगी, कटने के अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद कई जगह और दिखवाया हमने, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अंगुली बच जाएगी। तो वहाँ अरदास लगवाई भगत जी, हमने अरदास लगवा के ज़्यादा तीसरे दिन का 19 टाइम दिया था अंगुली कटने का आगरा। तो हम विशेष ही ज़्यादा थक गए थे, तो हम विनीत पाठक के यहाँ पहुँचे जाके अंगुली कटवाने के लिए, जिसने टाइम दे दिया था 3 दिन बाद के लिए। तो जो अरदास लगवा के जो पहुँचे हैं, तो जो डॉक्टर ने टाइम दे दिया था कटने के लिए, तो वही डॉक्टर कहने लगा भाई अंगुली देखिए कि भाई अंगुली तो तुम्हारी बच गई। केवल 3 दिन का अंतर हुआ, और वो 3 दिन पहले कह रहा था कट गई, और आज अंगुली देख के कह रहा है कि भाई अंगुली तो तुम्हारी बच गई। ये क्या हुआ वो जो तो परमात्मा ही जाने। और उसने मना कर दिया कि भाई अब तो आप जैसे पट्टी अट्टी ड्रेसिंग जो कर रहे थे वैसे ही करें।
और जो ट्रीटमेंट चला रहे थे वही चलाएं और अंगुली सही हो जाएगी। तो ये अंगुली हमारे संत रामपाल जी महाराज से ही प्रार्थना हमने लगाई थी, तो प्रार्थना से ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ही हमारी भक्तवती की अंगुली बिल्कुल सही कर दी और बिल्कुल चंद दिनों में ही वो सही हो गई। जब पहले से वही ट्रीटमेंट कर रहे थे, बहुत कर्रा ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो ट्रीटमेंट भी हमने बिल्कुल स्लो कर दिया, केवल ड्रेसिंग की है और वैसे ही परमात्मा की रजा से ही वो सही हो गई। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, जो श्रद्धालु जो देख रहे हैं उनको संदेश क्या, मैं अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उन भक्त समाज से, जो भी भक्त हमको देख रहे हैं इंटरव्यू हमारा ये, तो मैं प्रार्थना करता हूँ भाई, ये सद्भक्ति है, सदमार्ग है, आप लोग कहीं इधर उधर न भटकें। ये वास्तविक पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में है, तो आप उपदेश लें और भक्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें और सुख भी प्राप्त करें। धन्यवाद सर। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उन्होंने सोचा कि रामानंद से ही जोड़ दिया कि उसने न्यू बता दी तुम कुंवारी गाय का दूध पिएगा, और आगे लिखा वो दूध, वो फिर दूध चला गया, वो दूध का प्रकरण काट दिया इन्होंने। फिर भी मालिक की दया से वो 2 पंक्ति रहेगी। अब गरीबदास जी ने वो निर्णय किया है क्या, अब पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब परमात्मा ने जो बताया कि मेरी वाणी प्रकट होएगी 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, लेकिन गरीबदास जी की वाणी को भी गरीबदास के पंथ वाले, उससे पहले वाले कोई नहीं समझ सकेगा। ये मेरी वाणी का निर्णय करने की चेष्टा करेंगे पर इनको ज्ञान नहीं होगा। और ये 12 पंथ हम ही को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। अब इस दास के साथ क्या हुआ कि हम छुड़ानी जाते थे, जहाँ गरीबदास, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था, जहाँ परमात्मा कबीर देव जी उनको जंगल में आकर मिले थे, हमारे पूज्य गुरुदेव जी वहाँ जाते थे। एक लिंक जोड़ना था, पहले लिखा हुआ था, इसलिए गुरु जी के सतलोक जाने के बाद हमारा वहाँ पर बहुत विरोध हो गया, क्योंकि हम सच्चाई बतावें, वो अनुवाद गलत करें गरीबदास जी की वाणी का, तो हमारा उनका पार नहीं पड़ी, हमने अलग से आश्रम सेट करना पड़ा। फिर वो इतने विरोधी हो गए कि हमारे साथ हमारी पता नहीं कितनी उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, वो गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, न्यू है, तो वो कांड करवा दिया करो था कुछ। ये और दूसरे पंथी लाग लिया, आर्य समाज वाले जो उनकी पोल खोल दी, दास ने सच्चाई बता गए, तो सब ने मिलकर ये पंगा पा दिया। लेकिन भगवान का साथ जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले से 1000 गुना आगे बढ़ गया हमारा पंथ, पूरे विश्व में चला गया परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि ये परमात्मा का चलाया हुआ है। और इसमें जो बाधा करता है भगवान के मार्ग में, वो तो अंधा गधा है। हिरण्यकशिपु अंधा गधा था, छाती तोड़वा के मान्या, कहते हरना कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, आचार्य को आवर जुल्म इसे करें, तो वो कहते हैं इसे, ये पापी कहते हैं हरना कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, वो तो भगत को आवे और कर्म अपने बेटे ने भी मारे अभिमान के बस। तो कहने का भाव ये है कि ये आचार्य को आवे और गुरु और अपने शिष्यन भ्रमित करें, झूठ बोला झूठ बोला। हम तो प्रमाण दिखाते हैं और जो तुमने लिखा है वो रूबरू कराते हैं। पता झूठ कहाँ बोल दी मैंने, मत लिखा हुआ दिखाता हूँ, आपके गुरु ने ये लिख रखा है और वेद ये बता रहे हैं। बता झूठ कब बोल गया मन, तो फुर्सत है कोई ना झूठ बोलने की, टाइम है कोई नहीं, कोई सारी साची दरी भगवान ने लिख रखी। अब गरीबदास जी की वाणी में पारक का अंग है, एक चैप्टर है पारक का अंग, उसमें बहुत निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और महक के कमल खुशी बहे और लिया ईस को गोद। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम,
अब गरीबदास जी ने पूर्ति की है, जो वो दूध आ गया, दूध चला गया, फिर खुश हुआ, यो बकवाद कर रखी, कुछ मिलावट और कुछ कटिंग पटिंग करके उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन हो गया, ये हो गया। अरे सच्चाई ये थी जो गरीबदास जी ने बताया। जैसे आदरणीय तुलसीदास साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले जो घटना घटी थी, अब कलयुग में एज इट इज लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और सबको मान्य है वो, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि रेंज होती है। उस तुलसीदास की रेंज खुल गई थी, वह दिव्य दृष्टि खुल गई थी, और पीछे की जो चलचित्र की तरह सामने आ जाती सब घटनाएं वो तुलसीदास जी ने लिख दी थी, और वो सही है। ऐसे ही गरीबदास जी ने, परमात्मा ने गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया। अब वही जो लीलाएं काशी में घटी थी, उसे अरबों खरबों वर्ष पहले सृष्टि जहाँ से प्रारंभ हुई वहाँ तक की रेंज मालिक की, क्योंकि ये दूरबीन की रेंज होती है, दूरदर्शी की। तो परमात्मा जो गरीबदास जी को रेंज दी वह सबसे दूर तक की रेंज की थी। तो गरीबदास जी ने जो भी वार्ता हुई वो चलचित्र की तरह देखकर जब बोली ये वाणी, क्या लिखा है? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। शिव भगवान ने जो साधु रूप में खड़े थे, बालक रूप परमात्मा को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। जब दोनों शक्तियों की आपस में नजर मिली तो उसने परमात्मा को प्रणाम किया शिव जी ने, और क्या कहा? धन मोमन धन पूरे ना ये धन काशी निकाम। कि ऐसे महापुरुष आए। अब वो पहचान तो नहीं सके शिव जी कि ये कौन पुरुष है, कौन भगवान है, लेकिन उनकी जो लीला छवि और अंदर की, क्योंकि इनके अंदर दिव्य दृष्टि होती है, ये अवश्य महसूस हो गया कि ये बहुत परम शक्ति परम सिद्ध पुरुष है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बहुत अन्य और भी सिद्ध से अलग अलग वैरायटी की शक्तियाँ होती हैं। इनसे जो अलग और भी अच्छे संत साधु होते हैं, तो इन्होंने सोचा कि कोई और परम शक्ति है जिसको हम भी नहीं जानते, वहाँ से कोई अवतार आया है। तो इस जान करके उन्होंने भगवान शिव ने भी प्रणाम किया। 7 बार चर्चा की, 7 बार चर्चा करी, ये बोले बालक बहने शिव को करो। अब 7 बार कबीर साहब की बालक रूप में, नवजात शिशु रूप में, और शिव जी भगवान साधु रूप में खड़े। 7 बार बातचीत हुई, और वो खड़ी खड़ा देख रहे दोनों पति पत्नी। वो सोच रहे साधु में इतनी करामात है कि मेरा बेटा बुलवा दिया, अवश्य ये मेरे बच्चे को दूध भी पिलाएगा। फिर शिव ने कहा उस सिर पे हाथ धरकर मोमिन को कि धन भाग है तुम्हारे। मोमिन माने मुसलमान। नीरू को कहा कि जाओ, धन भाग है तुम्हारे घर पे, ऐसे बच्चा आया है तो परम शक्ति है, और इस काशी का भी धन भाग है जहां पर ऐसे संत प्रगट हुए हैं। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने शिव को कर मस्तक धरा, ल्या मोमन एक धेनु ल्या धैन, और अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल। कंवारी को, बिना ब्याई को कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भये दयाल। अब यहां भी स्पष्ट लिख दिया कि कंवारी गाय का दूध पिया उस बालक ने, और उन परमात्मा की उस सूक्ष्म वेद में लीला में भी लिखा है कि जाके संग बैल नहीं लागा, कि एक गाय ला जिसके संग बैल नहीं लागा, यानी कति अनटच। और वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब आते हैं एक सुंदर रूप धारण करते हैं तेजों में। 3 सती थी उनका रूप है, उनमें से एक सती थी जो शिशु रूप में प्रकट होते हैं। उस समय वो बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। आज तक इतिहास सुना दो किसी भी भगवान का ऐसी लीला हुई हो जो वेद में लिख रखा है। जिन्होंने भगवान को देखा उन महापुरुषों ने अपनी एफिडेविट दे रखे हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी महे कबीर हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।
सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त, काशी नगर का वो लहरतारा तालाब जहां सर्व सृष्टि रचनाहार कबीर परमात्मा पृथ्वी से 16 शंख कौस दूरी पर स्थित अपने निज धाम से शिशु रूप धारण कर अपने तेजोमय शरीर को हल्का करते हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद। इस पूरे घटनाक्रम को देख ऋषि जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं, आज यह मैंने कैसा दृश्य देखा? ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम? गुरुदेव से पूछता हूं। ऋषि अष्टानंद जी के गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो कि विष्णु जी के उपासक थे और वैष्णव धर्म का प्रचार किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य प्रचारक रूप में भी बना रखे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? हे गुरुदेव, आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई, जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया। पुनः आंखें खोली तो वह प्रकाश तालाब के एक कोने में सिमटता हुआ दिखाई दिया। हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या कोई दृष्टि दोष? हे ऋषि जी, यह न तो भक्ति की उपलब्धि है और न आपका दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्भ में निवास कर फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं। अष्टानंद, कोई देव पुरुष ऊपर के लोकों से आया है। अब वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। स्वामी रामानंद जी ने अपने ज्ञान आधार से शिष्य अष्टानंद जी की शंका का समाधान किया। स्वामी जी का मानना था कि अवतार मां के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन स्वामी जी को यह ज्ञान नहीं था कि यहां कोई अवतार गण नहीं, बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा अवतरित हुए हैं, जो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर काशी में ही नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा दंपति भी रहा करते थे। वैसे तो इसी जन्म में वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। नीरू का नाम गौरी शंकर और नीमा का नाम सरस्वती था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वह भगवान शिव की भक्ति करते थे और शिव पुराण की निस्वार्थ कथा किया करते थे। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और हिंदू धर्म के बढ़ते प्रचार को देख मुस्लिम लोगों द्वारा जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया, जिसके बाद हिंदू धर्म के ही अन्य पंडित ब्राह्मणों ने उनको मुसलमान घोषित कर उनका कथा करना और गंगा दरिया में स्नान आदि करना बंद कर दिया, जिसके बाद नीरू और नीमा रोजाना लहरतारा तालाब पर स्नान करने जाने लगे। भले ही उनको मुसलमान बना दिया गया था, परंतु अब भी भगवान शंकर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन की तरह ब्रह्म मुहूर्त में आज भी नीरू और नीमा लहरतारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे।
संतान ना होने के कारण नीमा अपने भगवान शिव शंकर जी से रोते रोते हृदय से प्रार्थना करते हुए जा रही थी। हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है। एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत। ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है इस दुनिया में। इसी प्रकार आपस में चर्चा करते करते नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कमल के फूल पर परमात्मा प्रकट हो चुके होते हैं। प्रथम नीमा स्नान करके तालाब से बाहर आती है, फिर बाद में नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। जब नीरू स्नान कर रहा होता है तब नीमा पहले वाले वस्त्र धोने के लिए पुनः किनारे पर आती है और उसे सामने कमल के फूल पर कुछ हिलता नजर आता है। इसे देख नीमा सोचती है कि कोई सर्प फन हिला रहा है। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है। अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। ये शंकर भगवान, इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस कर नीमा, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जल में कहाँ से बालक आएगा? हे भगवान! देखना जी, वो बच्चा डूबेगा जल में। यह बालक पता नहीं किसका है। अब इसको हम घर लेकर जाएंगे तो नगर के लोग पूछेंगे कि किसका बालक चुरा कर लाए हो। हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा। इस बालक को भी छीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे। अब हिंदुओं से हमारा संपर्क रहा नहीं और मुसलमानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है। अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। नीरू नीमा को सारी स्थिति से परिचित करवाता है, जिसके बाद नीमा बोलती है, पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा, तू बहुत सिद्धि हो गई है। मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती है, परंतु अब मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। नीरू के काफी समझाने के बावजूद भी नीमा नहीं मानती। तब नीरू ने रोते हुए आंखों में आंसू लिए पहली बार नीमा के ऊपर हाथ उठाया और बोला, रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। नीरू, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या बालक बोल रहा है? जरूर यह भूत प्रेत या कोई सिद्ध पुरुष है। हे शंकर भगवान, लाज रखना। यह विचार कर नीरू चुपचाप बच्चे को घर ले जाता है। परमेश्वर का शरीर बहुत सुंदर था। आंखें जैसे कमल के फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ और उनकी लंबी लंबी अंगुलियां। शरीर से मानो नूर झलक रहा हो।
पूरी काशी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। नवजात शिशु रूप परमेश्वर कबीर जी को देखने के लिए पूरा काशी नगर उमड़ पड़ा। जो भी बालक को देखता तो उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता। शिशु रूप परमेश्वर को देख आत्मा अपने आप खींची चली जाती। देखते ही देखते स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गीत गाते हुए नीरू के घर बच्चा देखने को आने लग गए। परमेश्वर कबीर जी को देखकर कोई कहता यह बालक तो देव अवतार है, कोई कहता कि यह तो साक्षात विष्णु जी आए हैं, कोई कह रहा था यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। यह सब सुनकर नीमा अप्रसन्न हो जाती है। मेरे बच्चे के विषय में कोई कुछ मत कहो। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो? नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा कभी नहीं देखा, इसीलिए हम इसे देखने आए हैं। हे भगवान शंकर, इनकी नजर से मेरे बच्चे की रक्षा करना। नीमा ने बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी को ज्यों है दूध पिलाने की कोशिश की तो परमेश्वर ने मुंह बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीरू नीमा बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन बीत गए, परंतु बालक ने कुछ नहीं खाया पिया। माता पिता चिंतित हो गए कि बच्चे को किसी की नजर लग गई है। लेकिन भले ही 25 दिन हो गए, फिर भी बालक रूप में परमेश्वर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए यह बालक जीवित कैसे रहेगा, इसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। यह सोचकर एक दिन नीमा फूट फूट कर रो रही थी और व्याकुल होकर भगवान शंकर से रह रह कर प्रार्थना कर रही थी कि हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना ही नहीं था, जैसे तैसे रो धो कर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती, और अब दिया है तो ये मुझसे छीनो मत। इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बालक मरेगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगी। तब परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी हैं, भगवान शिव को प्रेरणा करके बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो मारूंगा नहीं, पर मेरी चिंता में जरूर मर जाएगी। क्यों रो रही हो बेटी? क्या परेशानी है आपकी? हे महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व भगवान शंकर जी ने यह बालक हमें दिया, लेकिन अभी तक इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सभी कोशिशें करके हम थक चुके हैं। आज भी इसने कुछ भी आहार नहीं किया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब यह बालक मरेगा और इसके साथ मैं भी आत्महत्या करूंगी। आपका बालक मुझे दिखाइए। इस बालक की लंबी आयु है, यह मरने वाला नहीं है। देख नीमा, कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। हे विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। हे शंकर जी, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, जिस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, फिर वह दूध देगी। मैं उस कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। बेटी, अपने पति को बुलाओ। नीरू, एक कुंवारी गाय ले आओ और साथ में कुम्हार के घर से एक घड़ा भी लेकर आना। वह बच्चिया दूध देगी, उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुछ देर बाद ही एक बछिया और मटका लेकर आ जाता है, जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार विप्र रूपधारी शिव जी ने उस कुंवारी गाय की पीठ पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। उसी समय उस कुमारी गाय के थन लंबे लंबे हो गए और थनों से दूध की धार बह चली।
नीरू ने पहले ही वह पात्र गाय के थनों के नीचे रख दिया था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो जाता है। फिर उस दूध को शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर जी ने पिया। नीरू नीमा ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए। तत्पश्चात विप्र रूपधारी शिव जी वहां से चले जाते हैं। नीरू नीमा पहले हिंदू ब्राह्मणी थे, तो लालचवश ब्राह्मण लोग बालक रूप परमेश्वर का नाम रखने नीरू के घर आते हैं। लेकिन मुसलमानों का दबदबा होने के कारण उनसे हिंदू समाज दबता था। काजियों ने कहा कि अब यह मुसलमान हो चुके हैं, लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से ही करेंगे। इतना कहकर नामकरण के उद्देश्य से काजी कुरान शरीफ को खोलता है, जिसमें प्रथम पृष्ठ की प्रथम पंक्ति का प्रथम अक्षर कबीर लिखा मिलता है। काजियों ने सोचा कि कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है, तो एक छोटी जाति के बालक का नाम कबीर रखना उचित नहीं रहेगा। यह सोचकर काजी द्वारा पुनः पवित्र कुरान शरीफ को खोला गया, तो दोनों पृष्ठ पर कबीर कबीर अक्षर लिखे मिले। इसके बाद काजी ने पूरी कुरान शरीफ का निरीक्षण किया, तो पूरी कुरान शरीफ में कबीर 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 अक्षर लिखा था, अन्य लेख नहीं रहा। यह कोई साधारण बालक नहीं है, इस बालक ने कोई जादू जंतर करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाहु अकबर हूँ। कल युग में मेरा नाम कबीर ही रहेगा। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये परमात्मा हैं। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको अब सुलझाना बहुत ही कठिन हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें ज्ञान क्या मिला? इसका कारण क्या था? इसका कारण है कि ये जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये काल का लोक है। यहां कोई जीव सुखी नहीं, और ये नहीं चाहता, ये यहाँ का जो स्वामी है ब्रह्म जिसको कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं, ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा के विषय में जानकारी हो। इसको भय बना रहता है कि यदि इनको अपने मूल स्थान का ज्ञान हो गया और वहाँ के सुख से ये परिचित हो गए, या कोई नहीं रहेगा। इस डर से ये राजनीति से और घटिया राजनीति से हमें यहाँ रोके हुए हैं, सुनियोजित षड्यंत्र से हमें यहाँ बांधे हुए हैं, रोके हुए हैं। कोई भी क्रिया देख लो, हमने विवश होकर करनी पड़ रही है। शरीर ऐसा दे दिया, यदि इसके अंदर टुकड़ा ना डालेंगे तो ये काम नहीं करे। इसकी रक्षा करनी पड़े, गर्मी सर्दी से भी बचाना पड़ेगा। सारा जीवन हम इसी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, इसी के रख रखाव में पूरा जीवन खो देते हैं, अंत में इसको भी खत्म कर देता है। यदि ये ना नष्ट होता हो तो कोई दिक्कत ना थी। हम इतने ढीठ हो रहे, इन दुखों को भी देख लेते, कोई पड़े रहते अभी। लेकिन ये नष्ट भी साथ होता है, ये डर साथ बना रहता है। कहने का भाव ये है कि जब तक हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की भक्ति ना तो कर सकते
और ना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकते। तो इसके लिए हमने उस परमात्मा को पहचानना है। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं ही सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। परमात्मा ऊपर सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। अपनात्मा ये चारों वेद प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाये हुए हैं, जो विशेषकर हिंदू समाज से संबंधित हैं। और सभी ये कहा करते हैं कि वेद तो एक सत्य ज्ञान है, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सत्य है। इसके साथ साथ पवित्र चारों वेदों के साथ साथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और साथ में पवित्र 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और इनको सत्य ज्ञान युक्त मानता है, इसको सत्य ज्ञान युक्त मानता है। लेकिन इन ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों का मिलता जुलता ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। और पुराणों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, और ब्रह्मा जी से आगे सुना उन ऋषियों ने, दक्ष आदि ऋषियों ने, मनु आदि ने, और अन्य ने अन्य से सुनते सुनते उन्होंने कुछ ब्रह्मा जी के विचार, कुछ अपना अनुभव, कुछ अपनी सोच, अलग अलग, जैसे भी 18 पुराणों के 18 वक्ता हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ललिता, ਲਲਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पिंड कीरतपुर साहिब। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਪੂਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਲਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਭ ਪੂਜ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਵਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੋਲਣੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੋਲਣੇ ਦੀ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ मतलब आ नहीं रही थी बाहर। मैं बड़ी जोर लाती थी भी मैं मतलब बोलूँ, पर मैं मतलब नहीं बोल सकी, बड़ी कोशिश करती, बड़ी परेशान सी। अपने मैरिज के बाद मैनू ये समझ नहीं आ भी हो की रहा है। तो अपने मतलब जिद्दां असीं देवी देवते नूं पूजदे है ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 32 ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਲ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਓਪਰਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ? 1.5 ਸਾਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ PGI ਜਾਂ 32 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਠ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੇ ਇਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾਹਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਚੀ ਹੋਈ, ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਏ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸੱਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ? संत रामपाल जी दी महाराज ते नाम दीक्षा 29 अप्रैल 2019 को। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਲੂੰਗੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ। ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਓਪਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੇਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾ ਵੀ ਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੇਠ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇਠ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖੁਦ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਦੋ ਸਰੂਪ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੇਠ ਜੀ ਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੇਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅੱਜ
ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੂਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਬਾਧਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਿਰਮੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੌਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਖਾਈ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਪਤਾਵੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਥੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਥੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਪਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਭੈਣ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨੌਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 3-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਜਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਔਰ ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪੂਜਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਸਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ थे ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਬਾਤ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ था ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ थे ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੀਣੇ ਦੀ ਰਾਹ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।